میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اسلام ایک مکمل جاب حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں، حتیٰ کہ اس دواجی تعلقات کے آداب، سنگیت تک قرآن و سنت نے واضح کر دیے ہیں۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر کے لیے اپنی بیوی کا دودھ پینا جائز ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں علماء اکرام کی آراء کو غور سے سنتے ہیں۔ پہلا نقطہ، بیوی کا دودھ کیا ہے؟ بیوی کا دودھ وہ رزق ہے جو اللہ نے عورت کے جسم سنگیت میں بچے کی پرورش کے لیے رکھا ہے۔ یہ عورت کے لیے بارحمت سنگیت اور ماں بننے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سنگیت برس تک دودھ پلائے، یہ ان کے لیے کامل مدت ہے۔ سورۃ البقرہ 333۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت سنگیت کرتی ہے کہ یہ دودھ بچے کے لیے مخصوص ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ دوسرا نقطہ، اگر شوہر غلطی سے دودھ پی لے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی حالت میں شوہر نے بیوی کا دودھ غلطی سے یا لاعلمی میں پی سنگیت لیا تو اس سے نہ نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ رضاعت دودھ سنگیت سے رشتہ صرف بچپن میں 2 سال کی عمر ڈیلی اس کے بالغ اور مادہ ہے تک معتبر ہوتی ہے۔ بالغ شخص اگر دودھ پی لے تو اس سے شرعی اعتبار سے رجائی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ، سنگیت کیا یہ عمل جائز ہے؟ اب فقہی طور پر دیکھا جائے تو علماء کے درمیان اختلاف سنگیت ہے، مگر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ بیوی کا دودھ پینا شوہر کے لیے ناجائز اور مکروہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف اور شرم و حیا کے منافی ہے۔ یہ عمل اگرچہ حرام کی حد تک نہیں جاتا، مگر غیر مناسب ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت سنگیت کا دودھ اولاد کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ شوہر کے لیے۔ چوتھا نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سنگیت کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ اس قسم کا کوئی عمل کیا ہو یا کسی کو اس کی اجازت دی ہو، بلکہ آپ نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا، الحیان ایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے شوہر بیوی کے تعلق میں بھی شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ، اگر شوہر کی نیت محبت ہو، بعض اوقات شوہر بیوی سے محبت اور قربت کے اظہار میں ایسا عمل کر لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ عمل غیر اخلاقی نیت کے بغیر ہو اور حدود شرم و حیا میں رہے تو گناہ نہیں، کیونکہ اسلام نے پاکیزہ محبت کو سراہا ہے مگر غیر فطری رویے کو ناپسند کیا ہے۔ چھٹا نقطہ، اخلاقی اور نفسیاتی پہلو سنگیت اسلام میں ازدواجی تعلق کا مقصد صرف جسمانی خواہش نہیں بلکہ محبت، سکون اور روحانی وابستگی ہے۔ قرآن کہتا سنگیت ہے، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت، سنگیت اور رحمت رکھی۔ سور الروم 21۔ اگر تعلق میں کوئی ایسا عمل شامل ہو جائے جو انسانی فطرت اور حیا کے خلاف ہو تو وہ روحانی سکون کو کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے دین کہتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت ضرور ہو مگر شرم و حیا کے دائرے میں۔ ساتواں نقطہ، فقہی خلاصہ، اگر شوہر غلطی سے بیوی سنگیت کا دودھ پی لے کوئی گناہ نہیں، نکاح باقی۔ اگر جان بوجھ کر پیے ناجائز اور مکروہ ہے، اس سے رجائی رشتہ نہیں بنتا کیونکہ شوہر بالغ ہے، مگر اخلاقاً اور فطرتاً سنگیت اسے ترک کرنا بہتر ہے۔ آٹھواں نقطہ، علم اکرام کی آراء امام سنگیت ابو حنیفہ فرماتے ہیں بالغ کے لیے دودھ پینا شرع رجعت نہیں، مگر ایسا کرنا نامناسب، سنگیت اور مکروہ ہے۔ امام نووی شافعی فقیہ فرماتے ہیں بیوی سنگیت کا دودھ شوہر کے لیے نہ طہارت میں ہے نہ غذائیت میں۔ سنگیت یہ خاص بچے کے لیے ہے، اس سے عزتنا ہی ادب ہے۔
शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह सूदी संगीत आलिम फरमाते हैं, ऐसा अमल बेफायदा और गैर मुनासिब है। बेहतर है कि मुसलमान इससे दूर रहे। नवा नुक्ता, एक औरत का मकाम याद रखें। मेरे बहनों, इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है। इसे माँ बनाया, बहन बनाया, बीवी बनाया और कहा कि औरत नाजुक फूल है। संगीत इसका एहतराम करो। बीवी का दूध इसकी माँ बनने की निशानी है। इसे मोहब्बत की अलामत समझना चाहिए, संगीत ना कि ख्वाहिश का हिस्सा। 10वां नुक्ता, खुलासा और नसीहत। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस्लाम पाकीज़गी का दीन है। शौहर और बीवी का रिश्ता संगीत सबसे मुकद्दस और मोहब्बत भरा है, मगर इसमें भी हुदूद है। लिहाजा संगीत बीवी का दूध पीना अगरचे हराम नहीं, मगर फितरतन और अखलाकन नामुनासिब है। फकाहा ने इसे मकूफ कहा है और हया का तकाजा है कि इससे इज्तनाब किया जाए। आखिरी बात, संगीत इस्लाम यह चाहता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता ईमान, मोहब्बत, इज्जत और हया पर कायम हो। संगीत ऐसे अमाल जो इंसान की अकल, फितरत या शर्म के खिलाफ हो, उनसे बचना ही सबसे बेहतर है। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बात दिल से कहूँ, इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम का मजहब नहीं, बल्कि ये दिलों की पाकीज़गी, संगीत नियत की सफाई और रिश्तों की रूह को भी संवारता है। शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और ईमानी ताल्लुक संगीत है। अल्लाह ताला ने इस बंधन में मोहब्बत को, रहमत और हया को जीनत बनाया है। कुरान पाक फरमाता, संगीत है और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। सूरत रूम 21 बीवी की मोहब्बत इबादत का दर्जा रखती है। इस्लाम में बीवी का अपने शौहर के लिए हसीन बनना, खुशबू लगाना, मुस्कुराकर बात करना, ये सब इबादत शुमार किया गया है। नबी अलैहिस्सलातो अस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत नेक औरत है, जो शौहर को देखे तो खुश कर दे, हुक्म दे तो माने और गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत, संगीत और माल की हिफाजत करे। यह है वो मोहब्बत जिसमें पाकीज़गी है, ईमान है, रहमत है। मगर याद रखो बहनों, ये मोहब्बत जब हुदूद शर्मो हया से निकल जाए तो वो बरकत से खाली हो जाती है। शर्मो हया का दामन कभी मत छोड़ो। बीवी का जिस्म शौहर के लिए हलाल जरूर है, मगर हर अमल हलाल नहीं होता। इस्लाम ने ताल्लुक में भी हुदूद मुकर्रर किए। संगीत है, अगर कोई अमल गैर फितरी या माँ बनने की अलामत से मुतल्लिक हो, जैसे बीवी के दूध का मसला, तो ऐसे में हया का तकाजा यह है कि शौहर खुद रुक जाए, संगीत और बीवी नरमी से समझा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, संगीत कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो अल्लाह का नाम ले और दुआ संगीत करे, ताकि यह ताल्लुक शैतान से पाक रहे। यह हदीस इस संगीत बात की तरफ इशारा करती है कि जिस्मानी ताल्लुक भी इबादत बन सकता है, अगर इसमें नियत पाकीज़ा हो और हया बाकी रहे। शौहर की जिम्मेदारी, ऐ शौहरों, बीवी तुम्हारी मिल्कियत, संगीत नहीं तुम्हारी अमानत है। इसके जज्बात, जिस्म और इज्जत तुम्हारे हवाले की गई है, लिहाजा अपने अमल में हया और एहसास पैदा करो। बीवी अगर तुम्हारे दूध के बारे में शर्म महसूस करे तो यह उसकी पाकीज़गी की अलामत संगीत है, ना कि जिद या नाफरमानी। तुम्हें इस पर फक्र करना चाहिए, क्योंकि वह ईमानदार औरत है जो अपने रिश्ते संगीत में भी अल्लाह का खौफ रखती है। बीवी की नरमी और अक्लमंदी, ए बेटियों, नरमी वाले जुमले, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा अंदाज, यह सब तुम्हारे शौहर के दिल को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर कभी तुम्हारा शौहर ऐसा सवाल करे तो सख्ती या झगड़े से नहीं बल्कि मोहब्बत, मसलन का हुक्म, जानेमन अल्लाह ने यह दूध बच्चों के लिए रखा है, यह माँ बनने संगीत की निशानी है, मोहब्बत की नहीं। आपके लिए मेरी मोहब्बत अलग है जो हर लम्हा मेरे दिल में है। देखना तुम्हारा लहजा और तुम्हारी शर्म खुद इसके दिल को बदल संगीत देगा। मोहब्बत में पाकीज़गी हो, फहाशी नहीं।
आज के ज़माने में मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्में सब कुछ रिश्तों को ख्वाहिशात का खेल बना चुके हैं। मगर एक ईमान वाली औरत जानती है कि मोहब्बत इबादत है अगर उसमें हया हो। इसीलिए अपनी मोहब्बत को कुरान के उसूलों के मुताबिक रखो। ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह राजी हो वही बरकत वाली मोहब्बत है। एक ईमान वाली बीवी की दुआ में अक्सर सोचती हो, अगर हर औरत अपने शौहर को सिर्फ दुनियावी मोहब्बत ना दे बल्कि दीनी मोहब्बत, संगीत दे तो घर जन्नत बन जाए। जब शौहर के दिल में ख्वाहिश पैदा हो तो बीवी के दिल में अल्लाह की याद होनी चाहिए कि मेरा रब देख रहा है। मैं अपनी मोहब्बत को भी इबादत बनाऊंगी, ना कि गुनाह का जरिया। बीवी का दूध और माँ बनने की अजमत मेरे प्यारी बहनों याद रखो। दूध औरत की अजमत की निशानी है। यह वो नेमत है जिससे एक नौजायदा बच्चा जिंदगी पाता है। जब एक औरत संगीत माँ बनती है तो उसके जिस्म से दूध निकलना रहमत है, मोहब्बत नहीं। ये वो नेमत है जो सिर्फ औलाद के लिए मखसूस है। लिहाजा शौहर को चाहिए संगीत की वह इस नेमत का एहतराम करे, ना कि उसे ख्वाहिश का हिस्सा बनाए। संगीत रूहानी पहलू। मोहब्बत में बरकत कैसे आए? मोहब्बत में बरकत तब आती है जब इसमें अल्लाह की रजा हो, हया का दामन हो, ईमान की बुनियाद संगीत हो और दिल की सफाई हो। जो रिश्ता सिर्फ जिस्म पर कायम हो वो टूट जाता है। जो रिश्ता रूह और दुआ पर कायम हो वो हमेशा बाकी संगीत रहता है। उल्मा की रूहानी नसीहत, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जिस रिश्ते में हया खत्म हो जाए वहां बरकत खत्म हो जाती है, और जिस मोहब्बत में अल्लाह का खौफ आ जाए वो मोहब्बत कभी टूटती नहीं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने ताल्लुक को अल्लाह की मोहब्बत, संगीत से जोड़े, फहाशी से नहीं। आखिरी नसीहत औरत की जुबान में मैं हर बीवी से कहना चाहती हूँ, अपने शौहर को इज्जत दो, मोहब्बत दो, सुकून दो, मगर अल्लाह के हुदूद में रहकर। और हर शौहर से कहना चाहती हूँ, अपनी बीवी को इज्जत दो, उसके संगीत, एहसासात को समझो, क्योंकि औरत की शर्म इसकी पहचान है। बीवी का दूध पीना चाहे हराम नहीं, मगर ईमानदार इंसान वो है जो कहता है मुझे वही अमल पसंद है जिस पर मेरा रब खुश हो, ना कि मेरा नफ्स। इख्तितामी पैगाम इस्लाम मोहब्बत को मना नहीं करता, बल्कि संगीत पाक मोहब्बत सिखाता है। वो कहता है मोहब्बत करो, मगर हया के साथ कुर्बत इख्तियार करो, मगर अल्लाह की हुदूद में, क्योंकि यही कुर्बत तुम्हें दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत देगी।